evening, everyone, and welcome to today's session of NutriLife 360. We have two esteemed speakers lined up for you tonight. You must have heard we eat with our eyes first. The more colorful our plate, the better it is considered. To understand this better, we're going to discuss the role of macronutrients and how to bridge the nutritional gap that we have, and what we call as the rainbow connection in food. All this and so much more. To begin the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Darapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's listen to him very, very carefully. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita, and good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. Today, we are going to be talking about phytonutrients. It is it is a topic which is so important, and yet it is treated in a very casual way. You will be surprised to know that already 25,000 phytonutrients have already been discovered. Another 10,000 are on their way to be discovered. But the potential is that it is believed that there are more than 1 million phytonutrients existing in various plants and foods that we eat. And there is not enough research and study done on it. But phytonutrients are crucial because they protect plants. And when consumed, offer humans powerful antioxidant, anti-inflammatory, and immune-boosting benefits, helping to prevent chronic diseases like cancer, heart disease, and age-related issues by fighting cell damage, free radicals, reducing inflammation, and supporting detoxification. They give plants their vibrant colors, smells, and tastes, and are found in colorful fruits, vegetables, whole grains, nuts, and spices. Now, what are the key benefits of these phytonutrients? The most important key benefit is it's got the antioxidant power. They neutralize free radical damage, and contributes to aging and disease. So when they neutralize free radical damage, and this damaged cells, are reduced, then it helps you into, as an anti-aging and helps you to get some other diseases. Then there are these anti-inflammatory effects. Many phytonutrients reduce chronic inflammation. How many times have you heard people complain that, I got pain in my joints, I got pain here, I got pain there. What is that pain all about? It's all about oxidative stress. It's all about inflammation. And hence, if you're not consuming this phytonutrient, then you're in a little bit of a problem. Now, key benefits would also be disease prevention. They help protect against, the world's most deadliest diseases like cancer, heart disease, diabetes, and neurological disorders by supporting healthy cells, communication, and detoxification. The most important thing is that when you take enough phytonutrients, you find that your immune support is well looked after. And you know how important is the immune support. Detoxification, they aid the liver in flushing out toxins, and all these kind of benefits are there. Now, the examples and sources in which the phytonutrients are, it's a very, very long topic. You'll get a gist of it in today's lecture. But in essence, while not essential, phytonutrients are not essential for immediate survival. Like we say that you need to have so much of protein, you need so many macronutrients and micronutrients. You don't need phytonutrients for immediate survival. But it's very funny because although they're not needed for immediate survival, they're needed for long-term survival. And, looking after one survival
looking for only short-term survival as compared for long-term survival is not a choice. It's a necessity to ensure that you have, not only have got macro and micronutrients, but you also have enough phytonutrients, consume. Hence, if you or your families in your supplementation program do not have concentrated fruits and vegetables from Nutrolite, you are doing yourself and your family a big disservice. If you have it, it's great. But if you don't have it, at least the people on this platform now know that you should make it a part of your supplementation program. It is one of the most important supplements, but yet it is the most misunderstood, and people are very casual about phytonutrients because they don't understand the power of phytonutrients. So I really encourage you to today listen to Raj very carefully, because some of your doubts and confusion will get cleared when Raj will dive into this topic and explain to you why phytonutrients are important and what is their use. So over to you, Raj. Yeah, sorry. Is my slide visible? Yes. Continue to share. Okay, thank you. Thank you, Farooq. And what a valuable input Farooq gave today, that you need phytonutrient not for immediate, but for living healthier and longer, you know. And why this session tonight? Because हम सब जानते हैं that health कितना important है, especially in this program, like why live medicine free and why live a longer life and a healthier life. But उसके कुछ कुछ points है, और आज का जो point है, that is the role of micronutrient and the rainbow connection, right? ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सो आज हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को, दैट कैसे ये इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ में, और कैसे ये इट हेल्प्स अस इन लिविंग अ हेल्दियर एंड अ लॉन्गर लाइफ. सो यू नो वाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट फारूक यहाँ पे कवर कर चुके हैं, बट दो चीज़ आज हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं. वाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द मॉर्निंग, राइट? मॉर्निंग में ही क्यों इंपॉर्टेंट है. बहुत बार हमने ये सुना है लोगों को दैट पीपल टेंड टू स्किप देयर ब्रेकफास्ट, दे विल स्टार्ट देयर डे एट अराउंड 12 इन द नून, और प्रॉब्ली दे स्किप द फर्स्ट मील. बट यू नो ये नहीं सही है, or because this is not correct, it has got a adverse effect on our health. So why micronutrients and why in the morning is what we are going to discuss. So micronutrient hote kya hai? Now this is like micro plus nutrient. द बॉडी नीड्स इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन इसकी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देर आर वाइटामिन मिनरल्स जो इस कैटेगरी में आता है. नाउ वाइटामिन आर फैट सोल्यूबल, दे आर ऑल्सो वाटर सोल्यूबल, एंड मिनरल्स है जो कि इनसोल्यूबल होता है. सो दिस इज व्हाट माइक्रो न्यूट्रिएंट इज मेड आउट ऑफ, लाइक वाइटामिन मिनरल हम सब सुनते हैं. लाइक बचपन में हमने सुना था एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. बट डू यू थिंक दैट द एप्पल इज कैरिंग द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन दैट इट नीड्स टू हैव टुडे? द बिगेस्ट चैलेंज इन टूडेज एनवायरमेंट इज, ए हमें नहीं पता हमारे लिए राइट क्या है, हमारी बॉडी का न्यूट्रिशनल लेवल क्या हमको चाहिए. वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड अदर पीपल, राइट? जो चीज़ हमारे को होनी चाहिए. सेकेंड, फूड को अगर आज आप देख लो, कोई भी ब्लॉगर को देख लो या कोई कहीं पे भी आप चले जाइए, वी हैव ओवर कॉम्प्लिकेटेड फूड. अदर वी हैव एडेड टू मच ऑफ चीज़ इन इट, और हमने उसको ये सॉस और ये सारी चीज़ों से उसको मिक्स कर दिया है. कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन हमारे फूड में होनी चाहिए, ये हमें सबको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसके बारे में. सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वी टेंड टू नॉट ईट करेक्ट एंड बी द अवेलेबिलिटी. एंड ये चीज आज आप देखोगे कि कैसे हम इस सेगमेंट को ब्रिज कर सकते हैं, एंड वी कैन मेक इट लाइक सो विटामिन एंड मिनरल. Now, what are vitamins? Vitamins are the micronutrient which our body controls, like हमारे बॉडी को वो चाहिए फॉर द वेरियस फंक्शन के लिए चाहिए. सो ये जो कुछ आप देख रहे हैं, B1, B2, B6, B12, ये वो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिशन है जो vitamins है जो बॉडी को चाहिए. एंड देन देर आर फैट सोल्यूबल vitamins which is like vitamin D, A, K and E, राइट? अगर आप इसको देखेंगे तो देर आर ओनली फोर टाइप्स विच इज DAKE, एंड इट डिजॉल्व्स इजीली इन फैट, एंड सम रिस्क ऑफ ओवरडोजिंग इसमें होती है. जो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिशन होती है ये डिजॉल्व्स वेरी इजीली इन वाटर.
they have low risk of overdosing and must be constantly taken, right? Vitamins, now ये important line है, vitamins cannot be synthesized in the body, hence there is a risk of vitamin deficiency and if a diet is not managed properly. So देखिए, अगर आपने डाइट को प्रॉपर मैनेज भी कर लिया, we are not sure about the source of the food that we are eating today, you know. हम दिल्ली में, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, and most of the vegetables that we have comes from Punjab. I'm not sure about the quality of the product that we are getting उसमें कितना pesticides है, कितना insecticides है, the quality of the soil and etc. So despite अगर आपको लग रहा है कि आप सही खा रहे हैं, आप sure नहीं हो that the food that you are eating contains the right set of nutrition in it, right? So इसलिए ये important बन जाता है. What are minerals? Minerals are those elements on the earth. Basically ये वो चीज़ें हैं जो earth से मिलती हैं, and through plant इसको observe करता है, and that is what we get. So ये कुछ categories है. About 4% of our body is made out of minerals, right? So they can also not be synthesized by the body and therefore must be taken from diet. A well balanced mineral intake is very very important. सो जैसा कि फारूक बोल रहे थे कि इनकी क्वांटिटी बहुत कम है बट इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ये डेफिशिएंट होने लगता है कहीं ना कहीं इनके जो फंक्शंस है उसके ऊपर इम्पैक्ट होने लगता है. नाउ जो चीज़ हमारे को फूड से मिलनी चाहिए जब वो नहीं मिलती ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी डेवलप सम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, राइट? और ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हम जो क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसके सोल्यूशन को मेडिकेशन में ढूंढ रहे होते हैं, और मेडिकेशन कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ राइट फूड, हेंस इट कैन नॉट बी टेकन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम फूड के ऊपर फोकस करें, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करें, रेदर देन सिकनेस को क्योर करने की कोशिश करें. बिकॉज अगर आपका इनपुट पैरामीटर सही होगा, प्रोबेबिलिटी कि आप बीमार पड़ेंगे बहुत कम हो जाएगी, या अगर आप कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में अटक गए हो तो आप उससे बाहर आ सकते हैं, एंड इट कैन बी रिवर्स्ड, राइट? सो वाई आर मिनरल्स एंड वाइटामिन इंपॉर्टेंट? जैसा हमने बोला कि ये क्वांटिटी बहुत कम है बट इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मिनरल है, ये डीएनए सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, राइट, फॉर्मेशन ऑफ बोन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, रेगुलेट बॉडी फ्लूइड्स, ये सारी चीज़ों में मिनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हाइयर देखते हैं विटामिन क्या रोल प्ले करता है. आपकी विजन हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्यून फंक्शन में दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, योर स्किन हेल्थ, योर नर्व हेल्थ, योर बोन हेल्थ. एंटीऑक्सीडेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो फ्री रेडिकल डैमेज हमारी बॉडी में होता है, एंटीऑक्सीडेंट उससे हमको बचाता है. जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है इसमें विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बहुत सारे लोग ये फील करते हैं दैट दे आर ईटिंग राइट, यू नो, प्रोबेबली आप सही खाना खा रहे हो, बट आप एक चीज़ समझिए कि योर बॉडी हैज़ टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड. आपके ऑर्गन हेल्थ उतने स्ट्रांग होने चाहिए. लाइक मोस्ट ऑफ दिस प्रोसेस जो होती है ये आपके गट में होती है, और लीवर ये प्रोसेस करता है. नाउ इमेजिन आप कितना फोकस दे रहे हैं अपने गट हेल्थ को स्ट्रांग रखने के लिए, या आप कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपने लीवर हेल्थ को, right? Sometimes we, not sometimes, most of the time we tend to take this process very very for granted. हमें ऐसा फील होता है कि हम जो भी खा लें, बॉडी ही तो है, बॉडी तो उसको प्रोसेस कर लेगी. बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि व्हेन दे आर ईटिंग अ फूड प्लेट और साथ में कोई कोला का एक ग्लास ले लेंगे. नाउ डू यू जेन्युइनली बिलीव दैट योर लीवर नीड्स, योर पैनक्रियास नीड्स दोस कोलास व्हाइल यू आर हैविंग योर फूड? सो ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, दे कॉज अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स टुडे. और जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, इसको आप ब्रिज करने देखेंगे, यू हैव द पावर दैट यू कैन रिवर्स एनी ऑफ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मोस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ऑल्सो. सो दिस आर द रोल दैट दे हैव टू प्ले, राइट? बूस्ट योर हेल्थ विद वाइटामिन एंड मिनरल्स. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अलग अलग वाइटामिन का उसका रोल क्या है. फॉर एग्जांपल आई हेल्थ के लिए वाइटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल स्पेशली आफ्टर कोविड अगर आप देखोगे तो हमारा जो स्क्रीन एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आज की तारीख में, एंड कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रेस है हमारे रेटिना पे और ऑप्टिक नर्व के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. सो वाइटामिन ए प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आई हेल्थ. बोन हेल्थ के लिए वाइटामिन डी, वाइटामिन के, मैग्नीशियम, कैल्शियम वेरी इंपॉर्टेंट. कितनी फ्रीक्वेंटली हम अपनी बोन डेंसिटी टेस्ट कराते हैं, या कितनी फ्रीक्वेंटली? नाउ बोन है, एज वी ग्रो ओल्ड बोन डीजनरेट्स. What is your game plan for it? Skin health, vitamin E, immunity, vitamin C, zinc, selenium, nerve health, हेयर हेल्थ, रेड ब्लड सेल्स, पैंक्रियाटिक हेल्थ, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो अभी फरूक ये सारी चीज़ बता रहे हैं, एनर्जी, थायराइड ग्लैंड,
अगर आप ये सारी चीज़ को देखेंगे, द वाइटामिन एंड मिनरल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ इमेजिन करिए अगर ये डिफिशियंसी हो गई तो ये सारी फंक्शंस में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। नाउ व्हाट इज अ गुड आइडिया? क्या हम वेट करें उस डैमेज को हो जाने के लिए, या शुड वी बी अवेयर अबाउट दिस थिंग्स एंड वी टू स्टार्ट वर्किंग? बिकॉज एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट एजिंग हेल्दी इज अ मैटर ऑफ चॉइस। सो आप एजिंग को तो नहीं रोक सकते, आप डी जनरेशन को नहीं रोक सकते, लेकिन उसको हेल्दी बनाना हमारे हाथ में है, एंड दिस इज व्हाट इट हेल्प्स अस, राइट? नाउ व्हाट मे हैपन इफ यू डोंट हैव इनफ माइक्रोन्यूट्रिएंट? Obvious है, blurred vision, poor memory, muscle weakness, confusion, loss of appetite, depression, fatigue, not having enough nutrition. इंडिया में आज से सम कपल ऑफ डिकेड्स अगो वी वर अ पुअर कंट्री, और हमारे में खाना ही नहीं था लोगों को इनफ, देयर वाज नॉट इनफ फूड दैट एवरीबॉडी कुड हैव अ 3 टाइम मील, राइट? नहीं था। आज की तारीख में अगर आप देखिए, फूड इज नॉट अ चैलेंज, मोर और लेस एवरीबडी कैन ईट फूड। द बिगेस्ट चैलेंज टुडे इज द न्यूट्रिशन रिच फूड इज द बिग चैलेंज। बहुत मुश्किल है एक न्यूट्रिशियस फूड खाना आज की तारीख में, और जब वो नहीं मिलेगा, सो ये जो सेशंस है, ये चॉइस नहीं है, आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट होते जाएगा। नाउ आई गो टू लाइक जो हम ऐसे फिजिकल इवेंट्स करते हैं, वहां पे आई मीट अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु आर लाइक आईसीयू हेड, और जब मैं उनसे बातें करता हूं तो मतलब द रीजन दे हैव जॉइन दिस प्रोग्राम इज दे वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, बिकॉज वो जिस कैटेगरी से अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स को बढ़ते देख रहे हैं, इट इज स्केरी इवन फॉर देयर फैमिली, राइट? सो प्रॉबेबली कई बार क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन वो आप उसको ब्रिज कैसे करोगे, शायद हमें ये नहीं, सोल्यूशन नहीं पता, तो प्रॉब्लम तो पता होता है। एंड दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी हियर टुनाइट, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द न्यूट्रिशन इज इनफ, न्यूट्रिशन इज नॉट देयर इन योर प्लेट। नाउ फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑल दिस न्यूट्रिशन? लाइक इट इज वेरी ऑब्वियस, मतलब प्लांट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये वो सारी चीज़ें जहाँ से हमें ये न्यूट्रिशन मिलता है। एंड अगर आप विटामिन या मिनरल को देखेंगे तो उसका कोरिलेशन है उसके कलर के साथ, इसलिए कलर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? ये वो कैटेगरी है, अगर आप देखेंगे कि विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे कैटेगरीज है, और अगर आप देखेंगे तो 21 फ्रूट में मिलता है या वेजिटेबल्स में मिलते हैं, उसके कलर्स क्या होते हैं, कलर्स का रिलेवेंस क्या है न्यूट्रिशन के साथ में, दैट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग्स, यू कैन गेट इन टच, जिसने भी आपको यहाँ बुलाया वो ये डिटेल में आपको ये शीट दे सकते हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट करके देखिए, ये सारे वाइटामिन इंपॉर्टेंट है, और एक कलर है, ये सारे जो कलर्स हैं या जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं या जो फूड है जिसके अंदर ये पाए जाते हैं, आप एक बार सोच के देखिए, क्या हम इतना कैलकुलेट करके खाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि हमारा फूड प्लेट में इतने कलर होने होने चाहिए, इतने टाइप्स होने चाहिए, क्या हम उसको कैलकुलेट करके खाते हैं? और अगर नहीं खाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, उसका इम्पैक्ट आएगा। जैसे फारूक बोले कि इट माइट नॉट शो यू इमीडिएट इफेक्ट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कैन हैव सम सीरियस इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, एंड हेंस इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड रोल क्या है और इसको ब्रिज कैसे कर रहे हैं। ये जो गैप है, जो हमारे को फूड से चाहिए, जो हमें नहीं मिल पा रही है, उस गैप को हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं, राइट? वेयर कैन यू गेट योर मिनरल्स फ्रॉम? सो अगर आप देखेंगे कैल्शियम, क्लोराइड, ये सारे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग फूड में हमारे को मिलते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, बट क्या हम ये खा पाते हैं डेली इतना कैलकुलेट करके? और नहीं खाएंगे तो क्या होगा? सो देर इज दिस गैप, जब आप नहीं खाते हो, सो देर इज दिस गैप, एंड दिस गैप इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल गैप। ये वो गैप है विच लीड्स टू ऑल द मेजर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स दैट वी सी टुडे। नो डेफिनेटली अगर वो बीमारी हो जाती है तो हम एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, वो टेम्परेरी हमें कुछ मेडिकेशंस लिख देते हैं, हमें टेम्परेरी सोल्यूशन भी मिल जाता है, बट वो मेडिकेशन का अलग से साइड इफेक्ट होने लगता है, बिकॉज दे आर केमिकल सब्सटेंस एंड दे आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज आर गट हेल्थ एंड आर लिवर हेल्थ। सो फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन, फॉर अ परमानेंट प्रॉब्लम, द सोल्यूशन कैन नॉट बी टेम्परेरी, बिकॉज जो चीज़ हमारे को फूड में खानी चाहिए, ए, हम वो राइट टाइप ऑफ फूड नहीं खा रहे, और बी, वी आर नॉट श्योर इफ द फूड इज कैरिंग द राइट सेट ऑफ न्यूट्रिशन इन इट, एंड दिस इज व्हाट लीड्स टू मेन lifestyle disorders that we see today. So so this program is meant, अगर आप हेल्दी हो तो इट विल हेल्प यू टू स्टे हेल्दी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और अगर इफ यू आर डीलिंग विद सम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू टू रिवर्स दैट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. We have seen in this community people reversing their diabetes. We've seen in this community people reversing their thyroid, right? And this is scientific. This is not something कि uh, वो कुछ आपको दे दिया और अब आप ठीक हो जाओगे, वैसा नहीं है, साइंस है इसके पीछे.
So, and this is what we encourage in these sessions, that we learn, because जब आप इसको धीरे धीरे समझोगे, ये आपका एक ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा जो आप जिंदगी भर अपने साथ कैरी कर सकते हो, राइट? Now, these are some of the stats. Now, do you know that 8 out of 10 Indians suffer from micronutrient deficiency? 8 out of 10. इस प्रोग्राम में जितने लोग होंगे, आप खुद सोच के देखिए, 8 आउट ऑफ 10 का अगर ये स्टैट्स है तो हम और आप अलग नहीं है. As per the reports, micronutrient intakes of 70% of the Indian population are less than 50% of the recommended daily allowance. Now, RDA जो है वो ऑलरेडी लोअर साइड पे है. Like this is not at the optimum level, it is already at the lower side, right? Because we in India we follow RDA, and RDA means कि आपको जिंदा रहने के लिए बेर मिनिमम कितना न्यूट्रिशनल लेवल चाहिए वो उसको डिफाइन करता है. बेर मिनिमम वाला जो लेवल है, बेर मिनिमम का भी 70% पॉपुलेशन 50% से नीचे है. And the challenge is not in the lower category of the economic background. The challenge is also in the higher income group category people, because you are eating, but you are not sure of what you are eating, right? शायद आप 350 रुपया किलो का वॉशिंगटन एप्पल लेके आएंगे, बट जब आप किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को प्लक करते हो उसके प्लांट से, मोस्ट ऑफ देर आर सम न्यूट्रिशन जो प्रोबेबली ऑलमोस्ट इन अ वीक्स टाइम दे आर लाइक नेग्लिजिबल उसको तोड़ने के बाद में. हमारे और आपके घर में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ रहे हैं कितने हैं जो फ्रेश आ रहे हैं, एकदम मतलब तोड़े खेत से और आपके घर पे आ गए. So there is a lot of other consequence of this, what we are in this modern lifestyle age, that we are not getting. So imagine करें अगर ये RDA का 50% भी 70% इंडियन पॉपुलेशन नहीं खा रहे तो what will happen? फारूक लास्ट सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे कि वी आर अ कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़. द लैंड हैज नॉट इंक्रीज्ड, लैंड उतनी ही है. सो इमेजिन करिए, इफ द क्रॉप यील्ड इज गोइंग अप, व्हाट इज हैपनिंग टू द क्रॉप क्वालिटी? विल इट कैरी मोर न्यूट्रिशन और विल इट कैरी लेस न्यूट्रिशन? इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस है, आप अपने घर के बाहर जाके देखिए कि आपको पिछले 20 साल में हैज़ द एयर क्वालिटी गॉन अप और गॉन डाउन? हैज़ द वाटर क्वालिटी गॉन अप और गॉन डाउन? हैज़ द सॉइल क्वालिटी गॉन अप और गॉन डाउन? अगर ये सारी चीज़ें हैज़ गॉन डाउन, हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग दैट द फूड दैट यू आर ईटिंग, दैट द क्वालिटी हैज़ गॉन अप? If the quality has gone down, what happens to your nutrition level? That also goes down. And because of all these things, we get to hear so much of lifestyle disorders today, right? आज हम बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सुनने को मिलता है कि मलेरिया किसी को हो गया और वो मलेरिया से चल बसे, नहीं सुनने को मिलता है. लेकिन ये जरूर सुनने को मिलता है कि उसको ये कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया था, या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था, या डायबिटीज़ हो गया था, या बीपी हो गया था, या कार्डियक. ये बहुत ज़्यादा अब सुनने को मिलता है, और ये वो बीमारी है जो हम पैदा कर रहे हैं, राइट? मैं ये चीज़ों को क्यों इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू build that importance, that why this is important and why this cannot be ignored. आज से पहले अगर आप इस सेशन में नहीं थे तो शायद आपको नहीं पता था, आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था. अब आप इस सेशन में हो, and hence you can't carry that benefit of doubt with you, that you were not aware. Now you are aware about it, right? दिस इज सम इंडियन स्टैट्स. आई मीन आप देखिए पूरा लाल या ऑरेंज में है, मतलब मुझे पढ़ने में भी डर लग रहा है कि मतलब ग्रीन तो आसपास भी नहीं है हम कहीं पे भी. सो ये हमारी डेफिशिएंसीज लेवल है रीजन वाइज, दैट व्हाट इज द लेवल, एंड रीजन वाइज हम कहाँ खड़े हैं. सो हेंस अगर आप देखिए, कोई भी जो अच्छा बिजनेसमैन है आज की तारीख में हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये सारे स्टैट्स क्या बताते हैं, आने वाले समय में पेशेंट्स बढ़ते जाएंगे. आप देखिए, अगर कहीं रियल स्टेट डेवलप हो रहा है या कहीं कॉलोनी डेवलप हो रही है, उसके पहले हॉस्पिटल का बेंचमार्क आज की तारीख में आ जाता है. द लास्ट टाइम आई वॉज विजिटिंग अ प्लेस इन मुंबई कॉल्ड थाने, एंड माई फ्रेंड वॉज टेलिंग मी, ये हॉस्पिटल इधर आ रहा है, ये हॉस्पिटल इधर आ रहा है, ये हॉस्पिटल हमारे कॉलोनी के सामने आ रहा है. एंड आई सेड, व्हाट डज दैट टेल यू? It is not a something very good thing to be proud of, right? It means that although we are a youth nation, but बहुत जल्दी we are also going to become a sick nation. बीमार हम, और वो स्टैट्स ऑलरेडी बहुत हाई है. तो ये चीज़ आप देखिए, यहाँ पे जो आप डिफिशियंसी लेवल देख रहे हैं इंडिया में, अलग अलग कैटेगरी का कितना परसेंटेज है और कैसे है, राइट? Now, are you getting enough nutrition through your diet? Now, this is what we spoke about, like कैसे इसमें nutrition loss होती है. So now, how healthy your vegetables are. Eat your food as soon as possible. Never let your food wilt. Wash food using as little water as possible, because अगर वो water soluble nutrition होएगा तो वो चला जाएगा. Cut your food at the last minute. Eat the skins. कुक फूड क्विकली एंड अवे फ्रॉम वाटर, बिकॉज अगर वो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिशन होएगा तो बिकॉज ऑफ एक्सेस वाटर वो इवेपरेट होएगा और वो खत्म हो जाएगा.
डोंट स्टोर योर फूड। नाउ कितने लोग हैं जो ये प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं? और बगल में जो आप देख रहे हैं, दैट्स द न्यूट्रिशनल लॉस कितना होता है डेज फ्रॉम। सो अगर 11 से 15 दिन है इन ग्रीन बीन्स, तो प्रोबेबल न्यूट्रिएंट लॉस जो हो रहा है दैट इज अराउंड 45%। ब्रोकली कॉलीफ्लावर 6 to 16 days, इट्स अराउंड 25%। आई थिंक दैट 6 दिन तो हम अपने ही फ्रिज में रख लेते हैं। छोड़ दो जो मंडी में और सब्जी वेंडर के पास कितने दिन पड़ा रहता है। कैरेट्स 9 to 10, ऑलमोस्ट 10%, राइट? सो दिस इज व्हाट द रियल ट्रुथ इज। Now, unlocking the nutrient, exploring the unique absorption of sites of vitamins and mineral. Now comes the second stage. बहुत सारे लोगों को लगता है कि they are eating correct. Now, my question is, body has to extract nutrition from the food that we are eating. It's a process. How healthy your organs are to do that process effectively is the second question. हमें ये लग रहा है कि अगर हमने खा लिया तो हमारी बॉडी ने न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लिया, बट ये अब्जॉर्प्शन भी एक प्रोसेस है। सो अगर आप इसमें देखेंगे तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ अब्जॉर्ब करती है बॉडी, वो एक्सप्लेन किया गया है। अब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। द ऑर्गन हेल्थ के ऊपर एक डिपेंड करता है, एंड देन आपके बॉडी पे भी डिपेंड करता है। इसलिए ये वॉक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइम ऑफ द फूड इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर आप सही समय पे खाना नहीं खाएंगे, जो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो इनफेक्टिव हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप देखें, डिनर टाइम इज लाइक अ लेट नाइट, एंड समवेयर अब एक कल्चर बन गया है कि डिनर टाइम मीन्स फैमिली टाइम। फैमिली टाइम मीन्स व्हेन एवरीबडी इज बैक फ्रॉम ऑफिस, एंड आई डोंट थिंक दैट पीपल आर बैक फ्रॉम ऑफिस बाय 6 p.m. in the evening. मोस्ट ऑफ द पीपल कम बैक होम बाय अराउंड 8, 8:30, 9, एंड आफ्टर दैट अगर आप डिनर खा रहे हैं तो जो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस है वही स्लो डाउन हो चुका है। बिकॉज सनसेट के बाद बॉडी के नॉट एफिशिएंटली डाइजेस्ट फूड, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। और आप खाना खा रहे हो तो आप कैसे सोच रहे हो कि आपकी बॉडी वो ऑब्जर्व कर लेगी? सो दैट्स द सेकंड बिगेस्ट चैलेंज दैट वी फेस। नाउ द choices, in fact, in today's time era of this modern age, it's, in fact, it is not a choice. Either you eat hard or you eat smart. व्हाट इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको न्यूट्रिशन, सो ये कुछ रेगुलर फूड है, आप इसको डिबेट कर सकते हैं कि नहीं नहीं वाइटामिन है इसमें, नहीं स्ट्रॉबेरी सी क्यों खाने की जरूरत है, ये एक एग्जाम्पल लिया गया। आप इसको किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। ना फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी जो बॉडी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वाइटामिन ए की, यू नीड टू ईट 233 स्ट्रॉबेरीज। अगर आपको विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो यू नीड टू हैव 16 cups ऑफ पम्पकिन, राइट? ये एक एग्जांपल है। आप विटामिन सी ऑब्वियसली, और दूसरे भी सोर्स हैं। अगर आपको विटामिन डी खानी है तो आपको 7 slices ऑफ सामन खाना पड़ेगा, सामन फिश, राइट? अगर आपको विटामिन ई की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है अपनी डेली नीड की, तो यू नीड टू ईट 950 grams ऑफ कैश्यू नट्स एवरी डे, ऑलमोस्ट 1 kg। कैल्शियम पूरा करना है तो 6 जवार रोटी। आयरन पूरा करना है तो 28 cups ऑफ ग्रीन बीन्स, फ्रेंच बीन्स जिसे कहते हैं। बायोटीन पूरा करना है तो 21 बनाना। B2 पूरा करना है तो 12 अंडे। क्रोमियम पूरा करना है तो 33 cups ऑफ स्पिनच। जिंक पूरा करना है तो 28 cups ऑफ रागी। मैग्नीज पूरा करना है तो 15 cups ऑफ बीट रूट। Genuinely, do you think we can eat all these things? And if we can't eat, then what will happen? Obviously, we are not getting the right set of nutrition, right? Now, ये एक दिन में असर नहीं डालेगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम असर डालता है। नाउ इसका मतलब क्या है, इसके लैक से होता क्या है? यू विल नॉट डाई इमीडिएटली, बट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल एक इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यू हो जाती है या हम बीमार पड़ जाते हैं, जो रिकवरी है वो बॉडी नहीं कर पाती। a weak building will not fall, बट एक थोड़ा सा भी अगर इम्पैक्ट आएगा देन इट विल फॉल। सो जो इम्पैक्ट है बॉडी उससे बचाती है। सो यू हैव अ चॉइस, राइट? एंड द चॉइस इज आइदर वी ईट ऑल दोस थिंग्स और वी सप्लीमेंट। हेंस सप्लीमेंट्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारा क्वेश्चन है कि क्या सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, इफ आई कैन ईट एवरीथिंग, राइट? इफ़ यू कैन ईट एवरीथिंग, आपका अपना क्रॉप फील्ड है, कोई अच्छी नदी किनारे है जहाँ पे सब कुछ फ्रेश है, आप खाइए, आपको सप्लीमेंटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो चॉइस आपके पास नहीं है, देन सप्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। एंड सप्लीमेंट्स में भी फिर दो कैटेगरी आ जाती है, नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक। सिंथेटिक अगर बॉडी में जाएगा तो रेसिड्यू छोड़ेगा, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। बट अगर नेचुरल है तो वो बॉडी उसको प्लांट सोर्स की तरह लेता है, एंड बॉडी एक्सेप्ट इट एज अ फूड। नेचुरल में भी दो बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है, लाइक ऑर्गेनिक तो बहुत बेसिक है यहाँ पे। दे टॉक अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंट मैपिंग एंड ऑल दो स्टफ। सो अगर आप न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट्स को स्टडी करेंगे कि दैट व्हाई दे आर द बेस्ट एंड दे आर यूनिक, इज यू नो
108 कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स को मर्ज करके एक स्टैंडर्ड बनाया गया, एंड दैट इज व्हाट न्यूट्रलाइट सर्टिफिकेट इज ऑल अबाउट. सो लाइक यहाँ पे हम आपको विटामिन और मिनरल के लिए जो दिखा रहे हैं दैट इज डेली प्लस. नाउ डेली प्लस क्या करता है? ये एक सप्लीमेंट है. आपने डेली सिर्फ एक टैबलेट लेना है. ये क्या करता है बेसिकली? ये आपको 24 असेंशियल विटामिन और मिनरल है जो आपको देता है. ये इमीडिएट रिलीज भी करता है, और कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जिसको पूरे दिन में धीरे धीरे रिलीज चाहिए, डिलेड रिलीज जिसे कहते हैं. तो ये जो टैबलेट में जो आप दो कलर देख रहे हैं ये उसको डिफाइन करता है. वाई डेली इज इंपॉर्टेंट? इज इट सेफ? येस, इट इज 100% सेफ. माई सन इज 18 years old, एंड फ्रॉम द डे उसका अन्नप्राशन हुआ था, वेन ही वॉज बॉर्न आफ्टर लाइक अ कपल ऑफ मंथ्स, उस दिन से ही इज ऑन ऑल दिस थिंग्स. मैं पिछले 20-22 सालों से इसके ऊपर हूं. नाउ वाई? बिकॉज वी अंडरस्टैंड ये क्यों है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है. आप इसको सही तरीके से स्टडी करिए. अगर आज आपको लगता है कि शायद ये आपके लिए है या नहीं है, इफ यू आर डाउटफुल अबाउट इट, टेक द हेल्प ऑफ द पर्सन हु इज इनवाइटेड यू. ज्वाइन द कम्युनिटी, अंडरस्टैंड, because it is not that we are promoting supplement, we are promoting health, and in that health ये important हो जाता है. So that's daily, हर दिन एक, right? क्या ये करता है? ये आपको वो सारे न्यूट्रिशन देता है जो शायद आपको ये सब खाने के बाद भी नहीं मिलता. DLDR, ड्यूअल लेयर डिलेड रिलीज, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि कुछ ऐसे होता है जो आपको इमीडिएट रिलीज के लिए चाहिए, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन चाहिए जो बॉडी को ग्रेजुअली चाहिए, और ये इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है. Now, what is the right time to have the micronutrient? कब खाना चाहिए? The answer is very simple, early in the morning. Why? Because जब आप सो के उठ रहे हैं, बॉडी में जो वेयर एंड टेयर है, जो वो रिपेयर मैकेनिज्म होता है, व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, हमारा जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत रिड्यूस्ड लेवल पे हमारा होता है. बिकॉज वो रिड्यूस लेवल पे होता है तो आप देखेंगे कि उसके बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बिकॉज द बॉडी हैज टू किक स्टार्ट द डे, लाइक बॉडी हैज टू किक स्टार्ट इटसेल्फ एंड द ऑर्गन नीड्स टू परफॉर्म. बट अगर न्यूट्रिशन ही नहीं रहेगा तो डू यू थिंक द ऑर्गन कैन परफॉर्म इफेक्टिवली? सो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि व्हेन इज द राइट टाइम टू हैव द न्यूट्रिशन अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर योर ब्रेकफास्ट, because now that's the time when the body kickstart and it needs the maximum level of the nutrition that is required, right? Now, importance of micronutrients in breaking down this thing, मतलब क्यों important है जो micronutrient in breaking down the food etc. energy production में maintaining strong immune system, right? वो क्यों उसकी important है? Kickstart the day with a proper intake, maintains bones and eye health, improve concentration and memory, maintains good skin health and healthy weight. Vitamins and minerals are consumed by our body at night, right? Body has inadequate vitamin and minerals in the morning, इसलिए ये important है. The rainbow connection, how color, fruits and vegetable impacts the gut microbiome. So जो हमारा gut health है, अगर आप समझिए कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है जो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले ये हमारे गट में होता है, और अगर आपका गट हेल्दी नहीं होएगा तो ये जो सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये नहीं हो पाता इफेक्टिवली. So hence it is very very important to have a healthy gut, राइट? सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर आप देखेंगे तो जो कलर है, हर कलर का एक रेलिवेंस है, और वो हमारे बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन के साथ वो रिलेट करता है और वो उसकी न्यूट्रिशन लेवल को एनहांस करने में मदद करता है. कलर्स इन द वेजिटेशंस आर ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पिगमेंट्स इन देम. सीजनल फ्रूट्स हैव इवन बेटर अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग रेस्पेक्टिव सीजन, इसीलिए सीजनल खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? These fruits and vegetables, which are rich in soluble and insoluble fibers, are very friendly for the gut health and promote the good bacteria in the gut. Right now, ये कुछ colors हैं और इसके relevance क्या हैं? For example, red color in the fruits have chemicals like carotenoids. ये जो चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे कि ग्रीन कलर का अपना रेलेवेंस है, ऑरेंज कलर का अपना रेलेवेंस है. सो ये सारे जो कलर्स है, इसका जो हमारे सेल्स है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट है. Hence it becomes very very important. राइट, दिस आर द प्लांट पिगमेंट्स, और वो कहाँ से आते हैं और उसमें क्या चीज़ वो रोल प्ले करता है, राइट? फॉर एग्जांपल, रेड कलर इन द फ्रूट्स हैव केमिकल्स लाइक कैरोटेनाइड्स. तो हर कलर जो हमारे को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, नाउ द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग टुडे, मोस्ट ऑफ दिस फ्रूट्स हैव गॉट वैक्स ऑन इट, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि भाई वो कलर खाएं या नहीं खाएं. बिकॉज अगर आप उसको पील ऑफ कर रहे हो तो यू आर नॉट गेटिंग द कलर, और अगर आप वैसे ही खा रहे हो तो उसमें वो आ जा रहा है वैक्स और अलग केमिकल सब्सटेंस आते हैं. मोस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स जो आज की तारीख में स्प्रे किए जाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे, दे आर एडहेसिव बेस्ड. सो जस्ट फ्रॉम अ सिंपल वॉश वो जाता भी नहीं है.
राइट, बिकॉज साइंस ने इतने एडवांसमेंट कर लिए है कि मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स आर नॉट लाइक कि आप उसको पानी से धो दो और वो निकल जाएगा। बिकॉज अगर ऐसा होता और अगर ये नॉर्मल होता तो किसान ऐसे ही बर्बाद हो जाता, बिकॉज एक बारिश होगी और वो पूरा क्रॉप में से वो धुल जाएगा। सो नाउ मोस्ट ऑफ दिस व्हाट यू गेट आर द एडेसिव बेस्ड, एंड उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है हमारे हेल्थ में कि कहीं ना कहीं वो केमिकल सब्सटेंस हम उसमें से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, दैट इज व्हाट वी टेक इट। सो कलर्स का ये रिलेवेंस है और ये चीज़ होती है, मतलब नहीं मिल पा रही है जिसके वजह से, बिकॉज यू नो द सिचुएशन इज मोर लाइक अ कैच 22, वेदर टू ईट और नॉट टू ईट। खाया तो भी प्रॉब्लम है बिकॉज वैक्स और अलग सब्सटेंस आ रहा है, नहीं खाया तो ये सारे कलर्स नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए जो फारूक फाइटो न्यूट्रिएंट के बारे में बात कर रहे थे, वो गैप है, एंड उसके वजह से जो इम्यूनिटी या जो अलग फंक्शन है जो ये प्ले करते हैं, राइट, वो नहीं हो पा रहा है। All these chemicals are to be found having antioxidant and anti-inflammatory activity that help in improving the gut health. But unfortunately, we are not eating, right? वो वैक्स को अवॉइड करने के लिए हम एप्पल को भी पील करके खा लेते हैं, बिकॉज हम एप्पल को पील कर रहे हैं, जो कलर है वो हमारे अंदर नहीं जा रहा है। ईट अ रेनबो। हाउ? प्लान योर मील्स विद कलर इन माइंड। Snack on fruit and veggies instead of taking a chips ka packet or a kurkure or anything like that. Experiment with new products, smoothies and salads. Benefit rich in nutrient, boost immunity, promotes healthy digestion, enhances skin health and mental health. ये सारी चीजें जो हमारे को मिलनी चाहिए, राइट। हेंस जो आपने डेली देखा था वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बट ये जो आप कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल देख रहे हो, इट इज रिच इन फाइटो न्यूट्रिएंट। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड फाइटो न्यूट्रिएंट, फाइटो मीन्स प्लांट बेस्ड। सो न्यूट्रलाइट concentrated fruit and vegetables contains essential phytonutrient and nutrient plant extracts in concentrated convenient form। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके बॉडी सेल्स इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये नेचुरल के ही फॉर्मेट में है। 2 घंटे के अंदर प्लांट और वेजीज में से न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, एंड दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस थिंग दैट यू आर गेटिंग, राइट। नाउ इट कंटेन्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स। नाउ ये सारे कैटेगरीज हैं जो इसमें, लाइक फॉर एग्जांपल क्यूरे क्यूरसेटिन फॉर सपोर्टिंग हार्ट हेल्थ, ब्लड वेसल्स एंड विटामिन सी फंक्शन, लाइक एलाजिक एसिड फॉर प्रमोटिंग कॉलोन हेल्थ एंड प्रोटेक्टिंग डीएनए लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो अगर आप देखेंगे, राइट, ये सारी चीज़ें जो बॉडी फंक्शंस है उसको उसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। सो you understood that why supplementation is important and why this micronutrient जो vitamin mineral और phytonutrient है ये क्यों important है, इसका function क्या है हमारे बॉडी में। जब आप इस कम्युनिटी में आते हैं तो आप देखते हैं कि आपके फूड प्लेट के ऊपर बहुत सारे कमेंट किए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि क्यों कलर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे अब विंटर सीजन आ रहा है एंड द कैरेट, कैरेट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन ऐड टू योर सैलड, बिकॉज अगर उसकी ग्लाइसेमिक लोड अगर आप देखेंगे, उसकी फूड क्वालिटी देखेंगे, दैट इज द बेस्ट। सो कैरेट मस्ट बी देयर इन योर फूड, राइट। जो भी आप सैलड्स खाते हो उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज व्हाट यू लर्न इन दिस कम्युनिटी, दैट हाउ टू स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, राइट। The last slide shines. Start every day with gratitude and optimism. Have your nutrition intention. You need to decide what goal you need to have. Now, the people who are there, a part of this community, it is like जो फरूक का मिशन है, मंत्रा है, हर घर तंदुरुस्त, हर घर मेडिसिन फ्री, right? The best part about this program is it is designed not for a day, for a month, but ये आपको equip करता है that how you can have a healthy life for the rest of the life, right? How you can have a disease-free life. I hope you learned something new today. एटलीस्ट जो मुझे समझ में है इज द लाइक ऑल दो हमें मैं ये प्रेजेंटेशन देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी हर बार जब मैं ये पढ़ता हूँ आई रिलेट टू द इम्पोर्टेंस। एक लाइन जो मुझे बार बार अफर्म होती है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस बट एजिंग हेल्दी इज अ मैटर ऑफ चॉइस। सो द चॉइसेस दैट वी डू फॉर आवर सेल्फ इज वॉट इज गोइंग टू डिफाइन दैट हाउ हेल्दी वी आर गोइंग टू लिव, राइट। एंड एक्सरसाइज डेली, बिकॉज आपके मेटाबॉलिक हेल्थ में आपके सब में 4 पिलर्स है हेल्थ के, राइट। अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, राइट सेट ऑफ न्यूट्रिशन, स्लीप प्रॉपर एंड एक्सरसाइज। ये 4 पिलर्स है जिसके ऊपर एक ऑप्टिमम हेल्थ बिल्ड की जाती है। ये चारों में से अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग हो जाएगा तो यू विल नॉट हैव द ग्रेट हेल्थ दैट यू वांट टू हैव फॉर योरसेल्फ। सो चारे पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। स्लीप ऑन टाइम, have the right set of nutrition, which is eat the right set of food, uh, exercise, and have a positive mental attitude. This is what you learn in this community. So, yeah, come join us and let's build a very, very strong community where we help people to live a disease free life. So, thank you. Over to Ruchita. Thank you so much, Raj, for
Wonderfully explaining the subject in such detail and just highlighting all of the importance. I hope we've gathered that. And like we always say, keep coming back. We always have more in store. And this is how we continue to build this community and gain good health. With that, we come to an end of this session, guys. Good night, stay safe, and see you in the next session.